जय जिनेंद्र, मैं विनीता स्वागत करती हूँ आप सबका धार्मिक और सामाजिक समाचारों में। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नागरिकों से अपील की कि वे उन लोगों को श्रद्धांजलि दें जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपनी जान गंवाई है। हर शनिवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक मौन रखकर उन लोगों को श्रद्धांजलि दें। डीसी वरिंदर कुमार शर्मा ने सभी लुधियाना वासियों से अपील की है कि वे कोविड-19 महामारी के खिलाफ युद्ध के दौरान गुजरने वाले लोगों को याद करने के लिए शनिवार को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक मौन का पालन करें। उन्होंने कहा कि इस दौरान सड़क यातायात से भी बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस सामाजिक कारणों के लिए सामाजिक संगठनों को भी सहयोग करना चाहिए। डीसी लुधियाना ने भी जिले के निवासियों से कोविड-19 मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर समय मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना और बार बार हाथ धोना हमें पंजाब सरकार के मिशन फतह को हासिल करने में सक्षम करेगा। आज पुलिस स्टेशन के बाहर भी कोरोना टेस्ट के टेंट लगाए गए, जिसमें लगभग 100 के करीब लोगों के कोरोना टेस्ट भी किए गए। परंतु नाभा की तस्वीरें कुछ और ही बयान कर रही हैं, जहां सरकार ने शनिवार को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक मौन रहने के लिए और श्रद्धांजलि देने के लिए कहा है। जहां है वहीं रुकने के लिए कहा है, लेकिन सरकार के दिशा निर्देशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई गई। सरेआम बाजारों में रोज की तरह रौनक दिखाई दी, परंतु पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह की नाभा में सख्ती नहीं दिखाई गई। लोग वाहनों के द्वारा आते जाते दिखाई दिए। लोग सरेआम धज्जियां उड़ा रहे थे। प्रशासन का कोई भी अधिकारी या पुलिस का कोई भी अधिकारी वहां मौजूद नहीं था। लोगों ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਕੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਨੌਬਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਉਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਆਉਣ। ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਖੰਘ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ 1 ਘੰਟਾ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਗੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੀ 11 ਤੋਂ 12 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚੌਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 3 ਨੰਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 11 ਤੋਂ 12 ਕੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਕੁਛ ਅੱਜ ਕਦਮ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ 11 ਤੋਂ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿਓ ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਹੀਕਲ ਦੀ, ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਕਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਇੱਕਦਮ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ 18-19 ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਦੇ। ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੌਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਸੈਚਰਡੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਈ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਦਿਨ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੌਖਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਲਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ? ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕਰਾਓ ਤੇ ਪਲੱਸ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਲ ਨਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਚੀਜ਼ ਫੈਲੂਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਚਾਅ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਨਾਭੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੂਟੀਨ ਵਾਂਗੂ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ, 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਲਾਇਕੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਪੀੜਤ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚੌਂਕ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆ ਜਾ रही ने, तक कोई भी रोक टोक नहीं हो रही। नामा से सुखचैन सिंह की और लुधियाना से राजेश मेहरा और जसविंदर की रिपोर्ट। आरटीआई एक्टिविस्ट सुरेश कुमार शर्मा ने अमृतसर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर उठाई उंगली। उन्होंने कहा कि शहर के विभिन्न हलकों में जल सप्लाई के लिए लगाए गए ट्यूबवेल के रखरखाव का ठेका 4.25 करोड़ के बजाय 4 करोड़ 80 लाख रुपए में देने का प्रस्ताव निगम सदन में पारित भी हो गया है। सुरेश शर्मा ने पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मेयर कमिश्नर ने सभी पार्षदों को गुमराह करके 4 मार्च 2021 को पत्र नंबर 9628 के अनुसार प्रस्ताव पास करवाकर लोगों के टैक्स के धन को खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की है। आरोप है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों के ट्यूबवेल का जो रखरखाव साल 2020 में 1 करोड़ 24 लाख 34 हजार था, यह ठेका जून 2020 से जून 2021 तक का टेंडर था। परंतु 31 दिसंबर 2020 को हाउस की बैठक में O&M सेल के अधिकारियों व मेयर कमिश्नर की तरफ से प्रस्ताव नंबर 15, जिसमें जून 2021 से जून 2022 तक शहर के 5 विधानसभा क्षेत्रों में ट्यूबवेलों के रखरखाव की राशि 4 करोड़ 81 लाख 40 हजार 4 गुना बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 में आयोजित हाउस की बैठक में प्रस्ताव लाकर सरकार से भी पास करवा लिया गया। शर्मा ने मेयर कमिश्नर से सवाल किया कि इतनी राशि बढ़ाने में उनकी कंपनी से क्या साठगांठ है। उन्होंने कहा कि जीके इंजीनियर कोऑपरेटिव लेबर की तरफ से एग्रीमेंट और वर्क ऑर्डर में लिखा है कि यदि ट्यूबवेल की संख्या बढ़ाई जाए या कम हो जाए तो भी कंपनी इस एग्रीमेंट पर पाबंद रहेगी और यदि सोसाइटी और नगर निगम अमृतसर सहमत हो तो यह एग्रीमेंट 2 से 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। सुरेश शर्मा ने स्थानीय निकाय विभाग को लिखकर मांग की है कि 31 दिसंबर 2020 को हाउस की बैठक में पारित प्रस्ताव नंबर 15 को रद्द किया जाए। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਟੈਕਸ ਰੂਪੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਾਵਤ ਆ ਅੰਨੀ ਪੀਸੇ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਚੱਟੇ। ਅੱਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਮਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। वाटर एंड सीवरेज का कोई डिपार्टमेंट ले लो, वह बुरा हाल है। प्रॉपर्टी टैक्स ले लो, वो भी अपने टारगेट तो घट है। अधिकारी अपनी जेबों च पैसे पाई जा रहे हैं और वो कोई नगर निगम के गले में पैसा नहीं है। अज मैं तुहानूं जो खुलासा करन जा रहा O&M विभाग जिहड़ा आ नगर निगम का O&M विभाग ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ शहर के 5 विधान सभा हल्के आ, नॉर्थ मतलब उत्तरी दक्षिणी ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਵੈਸਟ, ਇਹ 5 ਹਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਅ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਜੀਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੇਬਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਭਰਿਆ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਭਰਿਆ ਸੀ 23.5% ਤੇ 23.5% ਤੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਥ ਹਲਕਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਰਕਮ 37,77,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੋਟਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਟਿਊਬਲ ਵੱਧ ਜਾਣ ਜਾਂ ਟਿਊਬਲ ਘਟ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 23.5% ਲੈਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 25,83,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ ਖਤਮ होना है। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। श्री मुक्तसर साहिब में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से 400 साला शताब्दी समागम के तहत अलग अलग जगह पर गुरुद्वारों में समारोह का आयोजन किया गया। इसी के तहत दरबार साहिब श्री मुक्तसर साहिब में भी देर रात एक समागम करवाया गया तथा 400 साला शताब्दी समारोह के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके मैनेजर दरबार साहिब सुमेर सिंह ने बताया कि साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के तहत 400 साला मनाया जा रहा है। उस संबंध में आज श्री मुक्तसर साहिब में दरबार साहिब में यह काम कराया गया। इस मौके शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यकारी मेंबर नवजोत सिंह ने बताया कि यह जो समागम 400 साला शताब्दी पाकिस्तान के ननकाना साहिब में मनाने जाना था, भारत सरकार की तरफ से सिख संगत को इजाजत न मिलने पर यह प्रोग्राम अब बैसाखी पर ननकाना साहिब में मनाया जाएगा।
ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜੋ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਮਈ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਤੇ 100 ਸਾਲਾ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਰੋਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਮਾਣਯੋਗ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ 'ਤੇ ਹੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 5 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਹਾਂਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀਤਪੁਰ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਣੀ ਖੇੜਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 3 ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? 5 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖੇ ਆ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਗਲੇ ਸਮਾਗਮ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ? ਚੌਥਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਤੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਸਰਾਏ ਨਾਗਾ ਵਿਖੇ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5ਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਈਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ गुरु की खुशियां प्राप्त की हैं। श्री मुक्तसर साहिब से सोनू खेड़ा की रिपोर्ट। अमृतसर में रात के कर्फ्यू के बावजूद गोलीबारी हुई। मामूली झगड़े के बाद अमृतसर के कोट खालसा में गोलीबारी हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया और कार्रवाई करने का वादा किया। पंजाब सरकार द्वारा पंजाब में रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन कुछ लोग अभी तक भी कर्फ्यू होने के बाद भी गोलीबारी कर रहे हैं। ताजा मामला अमृतसर के कोट खालसा का है। मामूली विवाद के बाद एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने एक बयान में कहा कि हम जांच कर रहे हैं और जो भी कार्रवाई होगी वह की जाएगी। घटना हुई कि मैं जाना दुध देन ते इन्हें मैनू घेरिया ਸੀ, पहला भी 2 बार घेरिया ਸੀ। बस ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋਈ। कौन कौन सी ਜਿਹਨੇ ਘੇਰਿਆ? प्रिंसिपल। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੁੰਡੇ ਸੱਦੇ ਬਸ ਫਾਇਰਿੰਗ। ਹਾਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ? 5-6 ਫਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਆਈ? ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਬਿਆਨ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਕ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ 2-3 ਵਾਰਾਂ ਔਖਾ ਜਿਹਾ ਵਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੇਨਾ ਗੱਲ ਹੀ ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੇੜੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਆਪਸੀ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਵੀ तस्दीक करने के सामने गल आएगी उस अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। सिरसा के गांव जमाल में एक प्रवासी मजदूर की कस्सी मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। आशंका बताई जा रही है कि 2 प्रवासी मजदूर सतबीर और फूल सिंह की आपसी झगड़े में ही फूल सिंह ने अपने साथी सतबीर को कस्सी मारकर मौत के घाट उतार दिया।
ग्रामीणों ने इसकी सूचना जमाल चौकी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतक के परिजनों को सूचना कर दी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार गांव जमाल में पानीपत जिले से सतबीर सिंह और हिसार से फूल सिंह, 2 प्रवासी मजदूर पिछले 6 महीने से गांव में दिहाड़ी का काम करते थे। ग्रामीण ओम प्रकाश के नोरे में रात को ठहरे हुए थे। ओम प्रकाश ने बताया कि उसके नोरे में रहने वाले पानीपत से सतबीर का शव लहूलुहान अवस्था में पड़ा था। आशंका है कि दोनों में कोई झगड़ा हुआ होगा, तभी फूल सिंह ने सतबीर पर कस्सी से वार कर दिया, जिससे सतबीर की मौत हो गई। सुबह घर वालों ने जाकर देखा तो सतबीर लहूलुहान अवस्था में पड़ा था। इसकी सूचना उन्होंने जमाल चौकी पुलिस को दी। पुलिस अधिकारी सतबीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल पर आकर शव को कब्जे में कर लिया है और सतबीर के परिजनों को घटना की सूचना दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनाक्रम ये है जी, ये शाम को 7 बजे खेत से सरसों काट गए थे। इसको खाना खुना पका दिया हमें घर से और सो गए। और ये रात को अपने खा पी के रोटी पी के दारू सुते पड़े थे। जो फूल सिंह है नहीं, जिसके साथ उसके वारदात कोई आपस में झगड़ा हुआ तो फूल सिंह ने उसके बार कर दिया। बार करने बाद में कस्सी से मार दिया। जिसके बाद फूल सिंह ने वहाँ सो गया आराम से और गेट जड़ दिया। जिसके बाद हमारी बड़ी माँ है वो आई सुबह 6 बजे पशुओं को चारा डालने के लिए, तो गेट खोला तो फूल सिंह ने बोला कहता जी अंदर मत जाओ। तो क्या बात है? क्या यही बात है, नहीं जाना। फिर वो जो क्यों कि मैंने इस आदमी को मार दिया, मेरी गाली गलौज दी इसने इस टाइम। फिर हमारी बड़ी माँ ने जाके हमारे प्रकाश को जगाया, कहा ये बात होगी। प्रकाश गया, प्रकाश ने उसने सब बात बता दी। इसके बाद प्रकाश ने मुझे कॉल किया, मैं भट्टे पर था 6 बजे, तो ये बात होगी। वो कोई बात नहीं। मैं घर पर आया, आगे देखा, फिर मैं आगे चौकी यहाँ सूचना दी और ये बात कर दी। कितने दिन से वो रह रहे थे आपके पास? फूल सिंह 8-9 महीने से रह रहा था। जो ये सतबीर नाम का है, इसको फूल सिंह नहीं लाया था 8-7 दिनों से हिसार से। 8-7 दिन हो गए मजदूरी करने के लिए आया था, सरसों काट रही। ये जी शराब पीने के बाद में हुई है, आपस में झगड़ा होने की वजह में किसने भी इसको गलौज दी, किसने भी इसने गाली दी। इस चक्कर में नशा में होके जिसने भी उसकी लाठी मारी, फिर वो कहा मैं तुझे मारूंगा। फिर जिसने सोचा ये हमें मारेगा, बीच पहले आने इसके चोट मार दी। नहीं जी, कोई किसी को पड़ोसी को हमें कोई चिल्लाहट नहीं सुनी, क्यों हमारा नोरा पड़ता है साइड में, वो अंदर सोते हैं, आगे कोई दिक्कत नहीं। काम करके आए थे सरसों कटा के। ये ओम प्रकाश सनो बिरबल बेनीवाल के नोरे में नौकर सतबीर सिंह रहा करता था और इसने सूचना दी कि इस तरह इसकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ, तफ्तीश जारी है। क्या कुछ इसमें हत्या किस चीज़ से की गई है? सीन ऑफ क्राइम की टीम को बुलाया गया है, क्या कुछ है? ये इसकी छाती में और सिर में डंडे और छाती में कसी वगैरह मार रखी है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया? नहीं, अभी नहीं, पता नहीं लगे। आरोपी का तफ्तीश जारी है। डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कार्रवाई 174 की अभी करवाएंगे। बाहर के है जी, मरने वाला पानीपत का है बता रहे हैं। सतबीर सिंह गुज्जर है पानीपत का। मरीजों को सूचना दे दी गई है, वो मौके पर आ रहे हैं। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं रात को हुई है, ये पता नहीं 10-11 बजे के बीच हुई है। सूचना हमें अब सुबह मिली है, जो नोरे में आकर उन्होंने देखा ओम प्रकाश जी ने, वो हमें सूचना दी, हम मौके पर पहुंच गए। अभी तो इन्वेस्टिगेशन में आगे आएगा, जो जैसे जो नशा करे। सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट। भारत बंद को लेकर किसान संगठनों ने आज सिरसा में ट्रेन को रोककर भी अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर किया। किसानों ने रेलवे स्टेशन पर ही केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसान संगठनों ने आज तीनों कृषि कानूनों के विरोध स्वरूप भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका सिरसा में पूर्णतः असर देखने को मिला। किसान संगठनों ने हिसार से सिरसा आ रही ट्रेन को रास्ते में ही रोककर अपना विरोध किया, जिसकी सूचना मिलने के बाद रेलवे व शहर पुलिस मौके पर पहुंची और किसानों को समझाया। जिसके बाद किसान संगठनों ने सिरसा के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को रोके रखा और ट्रेन के ऊपर चढ़कर नारेबाजी की। किसान संगठन आज दिन भर ट्रेन को रोककर अपना विरोध प्रदर्शन जाहिर
करती रही। किसान नेता रोशन सचान ने बताया कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों का लगातार किसान संगठन विरोध करते रहेंगे। आज उन्होंने रेल रोको अभियान चलाकर सरकार की नीतियों का विरोध किया है। उन्होंने साथ ही सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने इन तीनों कृषि कानूनों को जल्द रद्द नहीं किया तो आने वाले दिनों में सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान के ऊपर सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक 12 घंटे के भारत बंद का आह्वान किया गया है। उसी कड़ी के अंदर सुबह 6 बजे से ही सरसा के अंदर संपूर्ण रूप से बंद है। आप देख सकते हैं कि ट्रेनों का चक्का भी जाम है, शाम के 6 बजे तक रहेगा। बसें भी 6 बजे तक जो है एक भी बस नहीं चली। बाजार संपूर्ण रूप से बंद हैं और इसके अलावा कॉलेज के अंदर और यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने भी हड़ताल करके इस संघर्ष को किसानों के 3 काले कानूनों के खिलाफ MSP को कानूनी दर्जा दिलवाने के लिए और पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतों को आधा करवाने के लिए सभी वर्गों ने खुल के जो समर्थन दिया है, इसी कड़ी के अंदर यहाँ पे ट्रेनों को रोका गया है। शाम के 6 बजे तक ट्रेन का पहिया भी आज जाम रहेगा। जी यहाँ पे बैठे रहेंगे क्योंकि मोदी सरकार जो है वो 1% और अंबानी और अडानी जैसे कारपोरेट वर्ग के हवाले इस देश को करना चाहती है। रेलवे का भी निजीकरण किया गया है, इनका किराया भी कई गुना बढ़ गया है। इसलिए इन नीतियों के खिलाफ शाम के 6 बजे तक 12 घंटे का पूर्ण रूप से सफल भारत बंद आज आयोजित किया जा रहा है। सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेन्द्र।